will as a some advanced or some dummy project point of view, I would like to tell you about the Tomcat server and JSP and Servlet. So these two things are very important because if you know these things, then only you can say that you know the or you are done something in Java and the Java technology, or let's say C purpose. It's okay. C purpose it goes towards the system programming, but as we are going towards the web technology, so that's why this these things is very important for us. That I will tell you today. Let me first check the JSP. One second, please give me 1 minute. Okay. Okay. ठीक है. Um, I'm sharing the screen. Please, Aditya, tell me whether you can able to see it or no. Yes, Okay. sir. Can you see my presentation? Presentation दिसते का आदित्य? हो सर. Okay. Uh, so now just let me introduce your first what is JSP and Servlet and why it is important. This is a Java technology. So first of all, what is the meaning of web application architecture? Web application होता क्या है? So everybody knows because everybody is working on internet. We are also doing this lecture using internet. So you know it that one is a web server. Sorry, one is a web server and one is a web client. So web client or client is having the web browser which gives the request to the server, and on based on this request the server gives you the response, right? Now just look at the contents. The client's request contains the name and address, that is the URL, right? www.google.com/index.html. It may be a one type of URL. So of the thing the client is looking for, क्लाइंट को क्या चाहिए, वो वेब पेज चाहिए. सो वो क्या करेगा, वो यूआरएल देगा, यूआरएल देगा, राइट? And what server does, the server uses has a lot of content that it can send to the client, right? That contents can be what, can be web page, can be web page contents, only contents, huh? JPEG files and other resources, some media and so and so forth, right? So response में क्या जाता है, response में contains the actual document that the client requested. एक्चुअल डॉक्यूमेंट यानी खाली डॉक्यूमेंट का पेज जाता है, राइट? वो एक्चुअली पेज नहीं जाता है. द पेज विच इज स्टोर्ड इन द सर्वर साइड, दैट पेज विल नॉट गो इन द क्लाइंट साइड, राइट? ओनली द कंटेंट्स. वो भी कैसा है, हाइपर टेक्स्ट में. बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, पेजेस जेपेक फाइल चाहिए, लाइक दैट. ओके, द फाइल्स आर देयर इन द सर्वर साइड ओनली, right? So see, the structure is like this. The user clicks a link in the browser. The browser is like this. The browser map, it creates the request and send it to the server side. The server finds the requested page, right? So I think it is clear. Then what happened, the browser gets the HTML and renders it on the display of the for the user, right? So it's actually the arrow will is like this. That means you can say the client gives a request to server and the server gives a response to the client. It's like this. The cycle is like this. Okay, so it's very again simple one. Let's go it in detail. डिटेल में जाते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं. आदित्य, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Or any student, please tell me, if you have got any doubt, please tell me. I will wait and I will again explain you. Okay, you can just ask me that, sir, please stop, and you ask the thing, right? Okay,
So the user types the URL on the browser. So this is the URL, right? HTTP colon slash slash. This is the URL, right? So the URL is very very important. It converts, this URL converts into request. This URL converts into request. The browser creates an HTTP GET request. And what is a GET request? Is GET request is like this. एक्चुअली रिक्वेस्ट के अंदर क्या होता है? रिक्वेस्ट के अंदर खाली ये यूआरएल नहीं रहता है. रिक्वेस्ट के अंदर रहता है व्हाट? द गेट एंड पोस्ट मेथड. कि गेट रिक्वेस्ट है, मुझे चाहिए, सो आई वांट टू गेट. व्हाट यू वांट टू गेट? दिस पेज. ऑन विच प्रोटोकॉल यू वांट? एचटीटीपी प्रोटोकॉल. सो दिस ब्राउजर विल से, this browser, the client will say, I am using HTTP protocol, I am having the version 1.1, right? And what I am requesting, to whom I am requesting? I am requesting this particular server. And user agent का मतलब है browser. Which browser I am using? I am using this particular browser. This is a request. The HTTP request is sent to the server. ये request, actually ये request जाता है. Request is nothing but the object. This object, right, goes, it converts from URL to object, और ये object जाता है server के पास. Now server finds a page, right? सर्वर को पेज मिला. अभी ये कोड क्या करता है फॉरगेट, लेकिन सर्वर फाइंड्स अ पेज. उसका पहला काम क्या रहता है कि जो यूजर को चाहिए वो सर्वर पेज है क्या अपने पास? तो है. देन इट जनरेट्स द एचटीटीपी रिस्पॉन्स. वो रिस्पॉन्स जनरेट करता है. रिस्पॉन्स इज अगेन एन ऑब्जेक्ट. तो रिस्पॉन्स में वो क्या लिखता है? रिस्पॉन्स में वो भी बोलता है, राइट, सी आई एम ऑल्सो यूजिंग एचटीटीपी प्रोटोकॉल, माई वर्जन इज 1.1, 200 ओके. 200 ओके का मतलब क्या है? द पेज हैज फाउंड. द पेज हैज फाउंड. आपको देखो कभी कभी 404 करके एरर आता है, 404, 404 करके एरर आता है वेब पेज में. उसका मतलब क्या हो गया? द पेज हैज नॉट फाउंड. द सर्वर पेज हैज नॉट फाउंड. आपको 200 ओके का मतलब है यस आ गया. सेट कुकी एंड सो फोर्थ. एक्चुअली कंटेंट्स भी वो भेजता है, कंटेंट्स भेजता है, राइट. सो देन HTTP रिस्पॉन्स सेंड टू द ब्राउजर और टू द क्लाइंट. और क्लाइंट के अंदर द ब्राउजर रेंडर्स द HTML. रेंडर्स का मतलब है, राइट, फ्लोटिंग. द कंटेंट्स विल गेट फ्लोट ऑन द वेब पेज. तो आपको फिर पेज दिखता है. द पेज विल बी लाइक दिस, login page, so and so forth, right? The client looks forward to the successful transaction, whatever is there, right? ये पिक्चर आपके दिमाग में फिक्स करो. Now there are millions of clients giving the request to the server. How the server is going to be give the response to all the clients within 1 second or within 1 second. How it is going to tackle? ये हम लोग जो देख रहे हैं, this is what? This is one टाइप ऑफ रिक्वेस्ट. मैं क्लाइंट हूँ, मैंने यूआरएल में ब्राउजर में कुछ तो टाइप किया है. दिस यूआरएल इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट. ये रिक्वेस्ट गया सर्वर के पास, सर्वर ने पेज फाउंड किया. नाउ सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स में कन्वर्ट किया और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मेरे को मिला, राइट. दिस इज व्हाट इज देयर इन डिटेल. अभी इसका भी डिटेल में जाओगे तो आपको और भी मजा आएगा कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट जाता कैसे है, ये वायर के थ्रू जाता कैसे है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर और क्या क्या रहता है. इट्स एक्चुअली इट्स बाइनरी ना. सो व्हाट आई ये जो पिक्चर क्या दिखाता है? पिक्चर दिखाता है कि भाई ये कैसे होता है, यू नो, इट्स इंटरनली हाउ इट वर्क्स. बट एक्चुअली हाउ इट वर्क्स और भी थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा. बट दैट डिटेल्स, यू नो, आई थिंक अप टू दिस डिटेल्स इट्स सफिशिएंट फॉर अस. इट्स सफिशिएंट फॉर अस, राइट? बिकॉज एवरीबडी इज यूजिंग इंटरनेट, एवरीबडी इज यूजिंग वेब पेज, एवरीबडी शुड नो ये होता क्या है. लेकिन हम लोग को अभी इसके ऊपर तो प्रोग्रामिंग करने का है ना. आई वांट टू डू द प्रोजेक्ट एंड यूजिंग जावा टेक्नोलॉजी. जो अभी मैं जावा सीख रहा हूँ, ये जावा इसमें क्या मदद करेगा? ये तो ही मदद करेगा ना ये सब करने के लिए. रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, वी आर ऑलरेडी स्टडिंग हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, so that object can be request or that object can be response or that object can be anything, right? वो ऑब्जेक्ट को कैसे मैप करने का है, कैसे भेजने का, फ्रॉम वन पीसी टू अनदर पीसी, वन क्लाइंट टू अनदर क्लाइंट टू द अनदर सर्वर. वो सर्वर से वापस कैसे ऑब्जेक्ट आएगा, इसमें तो हम लोग को सब खेलने का है. दैट इज ओनली द जावा इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट, बिकॉज जावा इज अ सिक्योर्ड लैंग्वेज एंड दैट्स व्हाई वी हैव सिलेक्टेड द जावा टेक्नोलॉजी. दैट्स मेक सेंस. What we are going to look at? We are going to look at three things. One is called as what is container. Container क्या होता है? The second one is called as MVC architecture, Model View Controller architecture, and the third one is J2EE architecture. Right? So my dear students,
दिस टाइम इट मे हैपन दैट कि आपको कंटेंट्स जो भी मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ टुडेज लेक्चर थोड़ा बहुत बाउंसर जाएगा, राइट, बट दिस इज गोइंग टू बी देयर, राइट, टिल द एंड ऑफ योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइफ, राइट। सो ये आपको सीखने का ही पड़ेगा बाद में, तो व्हाई नॉट नाउ, राइट। जेएसपी कंटेनर, एक कंटेनर रहता है। व्हाट इज अ कंटेनर? द कनेक्शन बिटवीन द वेब सर्वर एंड द जेएसपी प्रोग्राम, राइट। ये दोनों का कनेक्शन है। सो इट्स अ कंटेनर, कंटेनर का एक बैग है, राइट, विच इज बिटवीन द वेब सर्वर एंड द जेएसपी प्रोग्राम, दोनों के बीच में, राइट। इट प्रोवाइड्स अ लाइफ मैनेजमेंट साइकिल at real time support of web pages। JSP, what is JSP? जावा सर्वर पेज, ये दोनों को सपोर्ट के लिए ये बहुत बड़ा कंटेनर है। रिक्वेस्ट सेंड टू अ JSP पेज आर डिलीवर बाय द JSP कंटेनर टू द अप्रोप्रिएट वेब पेज। ये आपको अभी मैं ज़्यादा इसे में डिटेल में नहीं जाता हूँ, ये तो हम लोग करेंगे, एक्चुअली प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, राइट। बट दिस इज समथिंग कॉल्ड एज द कंटेनर। यू जस्ट इमेजिन दिस पर्टिकुलर द सर्वर में क्या होता है। सो दिस इज अ सर्वर, यू कैन जस्ट सी दिस इज अ सर्वर। इसमें क्या क्या है? इसमें जेएसपी है, इसमें सौलेट है, इसमें ईजेबी है। ईजेबी कुछ तो है नहीं, नाउ डोंट डोंट एंटरप्राइज जावा बिन्स, वो क्या करता है, वो थोड़ा सा हायर टेक्नोलॉजी में है, राइट। और इसके नीचे डेटाबेस है, इसके नीचे डेटाबेस है। एंड वेयर आर यू? यू आर एट द क्लाइंट साइड, ये आपका क्लाइंट है। यस, एनीबडी हैज गॉट डाउट? Somebody's mic is on, that's why I ask you. Please do not hesitate to ask me any kind of questions, right? Because this is going to be there। एक बार ये पिक्चर आपको क्लियर हो गया ना, then you can make a project very easily। That's why I want to tell you, right? Okay, fine। So this is my client machine। क्लाइंट मशीन में क्या क्या है? क्लाइंट मशीन में आपका वेब ब्राउजर है, क्लाइंट मशीन में एक्चुअली अपना क्लाइंट का एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है अपना। What is there inside a web server? वेब सर्वर में क्या है? वेब सर्वर में there are two containers like वेब कंटेनर। वेब कंटेनर जो हम लोग ने अभी जेएसपी कंटेनर का बात किया था, राइट। सो वन वेब कंटेनर विल बी जेएसपी कंटेनर। जेएसपी पेज, दिस इज अ वेब पेज। दिस इज समथिंग लाइक द सौलेट। सौलेट विल टॉक विद द डेटाबेस और सौलेट विल टॉक विद द बिन। एक बिन से बात करेगा। व्हाट इज बिन? बिन इज नथिंग बट अ जावा प्रोग्राम। ये भी एक जावा प्रोग्राम है, ये सब जावा का ही प्रोग्राम है। व्हाट इज सौलेट? जावा प्रोग्राम। व्हाट इज जेएसपी? जावा प्रोग्राम। जेएसपी भी जावा प्रोग्राम में है, सौलेट में भी। सौलेट itself इज अ प्योर जावा प्रोग्राम। बिन इज ऑल्सो जावा प्रोग्राम। यू कैन जस्ट इमेजिन, ये इसके लिए ये पूरा सर्वर का नाम ही दिया गया है जावा ईई, एंटरप्राइज एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन सर्वर। एंड दिस इज गोइंग टू टॉक विद द डेटाबेस। नाउ इट मेक सेंस। तो ये पूरा हो गया अपना एक्चुअली J2EE का सम आर्किटेक्चर डायग्राम, राइट। नाउ दिस इज समथिंग लाइक MVC आर्किटेक्चर। MVC का मतलब है मॉडल व्यू कंट्रोलर। नाउ लुक एट द ब्राउजर साइड। ब्राउजर का क्या मिलता है भाई? ब्राउजर को मिलता है व्यूज। द क्लाइंट इज गोइंग टू व्यू व्हाट? JSP मॉडल व्यू ना। MVC का व्यू, वी क्या है? व्यू। व्यू का मतलब क्या है? इट लुक एट्स द वेब पेज, इट लुक एट्स द JSP फाइल्स। JSP फाइल देखने का काम, एक्चुअली JSP फाइल होता किधर है? व्यू में, राइट। हु इज गोइंग टू हैंडल इट? द हैंडल और द कंट्रोल इट, द कंट्रोल इज गोइंग टू बी देयर एट द कंट्रोलर। तो कंट्रोलर के अंदर रहता है एक्चुअली आपका सौलेट। व्हाट इज सौलेट? मैं बोला है जावा प्रोग्राम है। अभी वो कैसे लिखते हैं, उसका काम क्या है, कैसे करने का है, वही तो हम लोग को सीखने का है। इट्स वेरी सिंपल। एक बार एक प्रोग्राम मैंने आपको समझाया, यू विल कम टू नो व्हाट इज देयर। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मॉडल। मॉडल, मॉडल का मतलब है द बिन्स। उसका मतलब क्या है? एनी स्टेट इट गेट चेंज, इट इज गोइंग टू बी हैंडल बाय द मॉडल। एनी नोटिफिकेशन, चेंज नोटिफिकेशन इज देयर इन द व्यू, देन इट इज गोइंग टू हैंडल, राइट। सौलेट इज गोइंग टू टॉक विद द डेटाबेस। डेटाबेस से कौन सा बात करेगा? ये बात करेगा सौलेट। नाउ इट हैंडल्स अगेन हैंडल बाय द मॉडल ऑल्सो। ये देखो, मॉडल इज ऑल्सो गोइंग टू हैंडल विद द डेटाबेस। यानी सौलेट भी डायरेक्ट डेटाबेस से बात कर सकता है, मॉडल भी डेटाबेस से बात कर सकता है। इफ यू डोंट हैव लाइक दिस मॉडल्स विद यू, देन यू कैन हैव द सौलेट। सो JSP एंड सौलेट तो आपके पास होना ही चाहिए।
JSP and Solid, it has to be there in your project. It may happen that I may use a framework. There is something called as framework. Framework का मतलब है मॉडल. तो अभी के दुनिया में, अभी के पूरे की दुनिया में, राइट, MVC आर्किटेक्चर ही यूज होता है. राइट, MVC आर्किटेक्चर, मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर, यही यूज होता है. यू गो इन पाइथन, यू गो इन Node.js, you go in anywhere, wherever you go, you will see, राइट. अगर आपका MVC ये नाम ही आपको मालूम नहीं रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं आता है, ऐसा उसका मतलब है. इवन दो यू आर डन सो मेनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, राइट. मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर सिंपल है, इट्स वेरी वेरी सिंपल. राइट, व्यू का मतलब है द व्यू, व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग टू शो इट टू द यूजर. यूजर को क्या दिखाने का है वो कौन बताएगा? व्यू. राइट, उसको उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? कंट्रोल करेगा. तो अपने पास क्या है? अपने पास JSP है. JSP इज गोइंग टू शो टू द क्लाइंट. अपने पास है Sowlet. Sowlet इज गोइंग टू हैंडल कंट्रोल ऑन द थिंग्स, राइट. एंड देर इज Sowlet के आगे पीछे क्या है? देर आर समथिंग लाइक मॉडल्स. Models means the beans. Again, these are the Java programs, right? Java programs which is going to interact with the database. Now it may happen that the model itself they are controller. Framework नहीं दिया हम लोग ने, तो हम लोग we are having the Sowlet only, right? So now it makes sense. So ये MVC है. MVC का मतलब आप पूरा समझ के ले लो. Everything is based on object oriented technology, right? This is also there are some tires. What type of tires? You know, this is the client tire, this is the web tire, and this is the business tire. Business tire means what? Actually business logic, right? I want to check a login form. Login form चाहिए. Login form is there in the web page. Fine. Login form किधर बनाएंगे हम लोग? JS में बनाएंगे, right? डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने का काम कौन करेगा? अपने पास Sowlet करेगा. So JSP के अंदर Sowlet है. Sowlet is going to talk with the business logic. So एक्चुअली लॉजिक और बिजनेस लॉजिक किधर रहेगा? Sowlet के अंदर. बिजनेस लॉजिक का मतलब क्या है? चेकिंग ऑफ द विद द डेटाबेस, वेदर योर यूजर नेम इज देयर और नो, वेदर यू वांट टू कनेक्ट टू द डिफरेंट सर्वर और नो, राइट. आपको कुकीज सेशंस सब मैनेज करने का है कि नहीं, व्हाट द काइंड ऑफ लॉजिक यू वांट. तो दैट काइंड ऑफ लॉजिक इज विद देयर इन द Sowlet. It may happen that you may have the project only of JSP. So JSP will talk with the JSP, another JSP will talk with another JSP, then JSP will talk with the database also. You don't require the Sowlet also. ऐसा भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं. जैसे आप व्यू और मॉडल, राइट, इफ यू डोंट हैव एनी मॉडल, यानी बीन्स वगैरह नहीं काम किया, Sowlet में है. Sowlet में भी काम नहीं किया तो JSP है, राइट. बट व्हाई यू वांट Sowlet? Sowlet एक बहुत ही सिक्योर्ड जावा प्रोग्राम है जो क्लाइंट को नहीं दिखता है लेकिन अंदर चलता है. That is called as Sowlet. That's why the people are working on the Sowlets. JSP, yes, you are working on the web page as well as the client side. Now, so it may chance that the people may hack your data through JSP as well. To protect your business logic, आपका logic किसने hack नहीं करना चाहिए ऐसा आपको लगता है, so you work on the Sowlet. That's why the people are using on the Sowlet. Otherwise JSP से भी काम होता है. ये देखो कैसा है. I have made this particular design pattern. अपना login पेज है, क्लिक किया. If you click on the submit, so it will goes in the Sowlet. Sowlet is what? Java program. Java program के अंदर क्या होता है? हैश टेबल होता है. यानी कौन सा JSP फाइल कौन सा Sowlet को कॉल करेगा, कौन सा JSP फाइल कौन सा Sowlet को कॉल करेगा. It will call this particular Sowlet. Sowlet is what? Is a controller, right? Inside it call with the bin. अगर आपने लिखा है तो, नहीं लिखा है तो भी चलेगा, जैसे मैंने बोला है ऑलरेडी. What is bin? Bin is a model, model view controller, right? अगर वो है, बिन को जवाब आ गया बराबर है, इट विल कॉल टू द Sowlet. Sowlet will say whether your login is valid or invalid, राइट. अगेन आपने इसके ऊपर क्लिक किया, अगेन इट विल गो टू द फ्रंट कंट्रोलर. फ्रंट कंट्रोलर का मतलब है पहला दरवाजा, दरवाजे के अंदर आने का तरीका. आपको सर्वर के अंदर जाने का है, इसके अंदर जाने का है, ये इसके अंदर जाने का है. यू हैव टू वर्क ऑन दिस Sowlet. ये फ्रंट कंट्रोलर डिजाइन पैटर्न है, ये एक डिजाइन पैटर्न है, ये डिजाइन पैटर्न है, ये दुनिया में पहली बार आ गया फ्रंट कंट्रोलर डिजाइन पैटर्न, राइट. जैसे कोई क्लाइंट आता है तो पहले दरवाजा ओपन करो, राइट. उसको तेरे को क्या चाहिए? ये पेज चाहिए, रुक जरा, आई विल जस्ट चेक विद दिस टेबल. मेरे पास में मेनू पे देखेगा, यस यू वांट दिस, यस है, वेट, आई विल कॉल दैट पर्सन. वो पर्सन दूसरे पर्सन को कॉल करेगा, वो दूसरे पर्सन ने रिस्पॉन्स देगा ये पहले पर्सन को, पहला पर्सन रिस्पॉन्स देगा मुझे, और मैं रिस्पॉन्स देगा, यस हो गया.
राइट, नया रिक्वेस्ट आ गया, सो इट्स अ न्यू रिक्वेस्ट ना, इनवैलिड, यानी मैं नया क्लिक किया तो वो नया नया रिक्वेस्ट है। नया रिक्वेस्ट जो आता है पहले दरवाजे पे आएगा, रिक्वेस्ट अंदर से नहीं आएगा, रिक्वेस्ट बाहर से आएगा। तो रिक्वेस्ट जैसे बाहर से आएगा, देन आई विल फर्स्ट ओपन दिस फर्स्ट सर्वलेट, यस व्हाट यू वांट, आई विल चेक इट विद द टेबल। इसको कहते हैं हैश टेबल और इसको कहते हैं मैपिंग टेबल, राइट। सो ऐसे लॉट ऑफ जेएसपी, देयर विल बी लॉट ऑफ जेएसपीज। साइन इन फॉर्म है, फीडबैक फॉर्म है, राइट, आपका शॉपिंग कार्ड है, राइट, सेशंस है, और द जेएसपी, दीज आर द रिक्वेस्ट विच आर कमिंग फ्रॉम द क्लाइंट। तो पहले अपना मैपिंग टेबल, मैपिंग का क्यों संबंध है, मैपिंग किया आपने तो फटाफट कॉल होता है ना, यू नो विच जेएसपी कौन सा रिक्वेस्ट आया तो कौन सा फाइल कॉल करने का, ये आपके पास टेबल है ऑलरेडी। सो दिस द वर्क बिकम फास्टर एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ पैटर्न, और पैटर्न इटसेल्फ इज कॉल्ड एज फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, हाउ जेएसपी इज कॉलिंग सर्वलेट, आप हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज इट, बिकॉज millions of users will send a login, so millions of requests are coming at this particular front controller। एक रिक्वेस्ट आएगा ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक अ ह्यूमन बींग, राइट। 5 आदमी हमारे घर में आ गए, हम लोग दरवाजा ओपन किया, किसको मिलने का भाई ये, इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स अ ऑनलाइन जॉब। ऑनलाइन पे मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आर कम एट वन टाइम। तो हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल इट, अगर आपके पास ये टेबल रहेगा, हैश का मैपिंग का टेबल रहेगा, तो आपका काम स्मूथ हो जाएगा। You will send a response very soon, right? The server or the client should not wait, क्लाइंट को वेट करने को चांस नहीं मिलेगा, नहीं तो क्लाइंट विल वेट, यू नो, कभी मेरा रिक्वेस्ट आएगा, मैंने रिक्वेस्ट भेजा है 5 मिनट में। नो इट विल नॉट हैपन इन द रियल टाइम ना। रियल टाइम में आपने अगर google.com किया, राइट, अरे google.com पेज आ रहा है, पेज आ रहा है, पेज आ रहा है, ऐसा आ गया तो ऐसा 4-5 बार आ गया तो देन यू विल लेफ्ट गूगल, राइट, यू विल नेवर यूज गूगल अगेन। आपको मालूम है, अरे क्लिक किया तो कितना टाइम आता है, कितना टाइम के बाद में आता है, राइट। तो इसके लिए तो लोग फ्रेमवर्क यूज करते हैं। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, डिजाइन पैटर्न। तो ये दुनिया का पहला पैटर्न है जो हम लोग अभी सीख रहे हैं इधर। ये देखो अगेन, ये मैप आ गया, दूसरे उसने इनवैलिड का है ना, तो इनवैलिड का रिक्वेस्ट आ गया, उसने दूसरा सर्वलेट कॉल किया, उसने बिल कॉल किया, बिन का रिस्पॉन्स आया, और ये तीसरा पेज आ गया, तीसरा आउटपुट आ गया। यू कैन जस्ट इमेजिन, लुक एट दिस डिजाइन पैटर्न, इफ एंड एवरीथिंग इज डिजाइन बाय द जावा। अगर ये मेरे को अगर जमता है, ये इसमें अगर मैं छोटा सा प्रोजेक्ट भाई, लॉगिन आ रहा है, सर्वलेट आ रहा है, फीडबैक आ रहा है, फीडबैक का सर्वलेट आ रहा है, उसका डिजाइन, ये इतना सा छोटा सा मेरे को अगर जम रहा है, सपोज, बहुत बड़ी बात है आपके लिए, बहुत बड़ी बात है। यू आर नाउ इन सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में अगर ये डिजाइन पैटर्न्स का आपको थोड़ा बहुत मालूम पड़ेगा, देन यू कैन टॉक अबाउट द फ्रेमवर्क्स। नेक्स्ट सेमेस्टर यू मे टॉक अबाउट द पाइथन एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। आगे जाके आप लोग बहुत बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करोगे इंडस्ट्री में जाके, बट दिस इज अ वेरी स्मॉल, इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू। ये बिगिनिंग है आपके लिए, राइट। और इसमें आप अपने प्रोग्राम करना आना चाहिए, इसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ। अदरवाइज कोर जावा, यस कोर जावा इज देयर इन योर सिलेबस। आपने, हम लोग मल्टी थ्रेडिंग ये तो ले ही रहे और लेने वाले ही है, राइट। इनहेरिटेंस, ओके ओके, थैंक यू। इनहेरिटेंस, राइट, वो तो हम लोग ले ही रहे, राइट। कंस्ट्रक्टर, ये सब चीजें हम लोग तो ले ही रहे, राइट। बट अल्टीमेटली वंस यू आर टॉक अबाउट द वेयर इज द एप्लीकेशन, ये अप्लाई किधर करूं, where I'm going to apply this, so this is a application level I am telling you, right? Okay, so it's a JSP overview. I will directly show it now on the thing. Let's say you are having the web page request, आपने भेजा JSP फाइल का कंपाइलेशन प्रोसेस है। तो क्या होता है, JSP page is converted into 2 pages as I told you, you know, one is actually Java file, so actually सर्वलेट कन्वर्ट होता है और दूसरा HTML कन्वर्ट होता है। So JSP file divides into 2 files, right? Now how? Let's go to the practical. Let's do it the practical. As I told you, how to install Tomcat server. The first is very important. How to install Tomcat server? Very simple. Go to the website Apache Tomcat 9.0.39. This is the latest version of Windows 64-bit. Just download the zip file. इधर आके क्या करो, आप एक्सट्रैक्ट करो, just extract it, right? So just I have extracted, you can look at this particular folder, I have extracted this, extraction मैंने already किया है, right? Number two points, as I told you, go to the bin, copy this bin
and now you are going to do what? The four things I have told you. 4 things मैंने आपको बोला था, वो क्या बोला था मैं आपको बोलता हूँ, is very very important. I think I have written some points, right? आदित्य, लास्ट टाइम मी के पॉइंट्स लिहिलेले का, काय करायचं ते? ओके, I think am I audible, Aditya, or anybody else? Yes, sir. Yes, sir. ऑडिबल आहे ना रे बाबा? कळतंय ना? स्नेहा स्नेहा. तर तू ग्लिच झालेलं म्हणजे You're audible. Okay, 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 okay. So now just look at this. I will go to the advanced system settings, environment variables, and as I told you, there are 4 types of variables you would like to see. First one is called as path. Another one is called as class path. The second one is called as a Java home, and another one is Catalina home. Catalina home, it's like हम लोग ऐसा जोक मारते थे कि Catalina it's a secretary, once you will come in the office, तो पहले secretary open करेगी, good morning, right? So it's like a home interface, Catalina home interface and Java home interface. These two home interfaces are very very important. So मुझे क्या करने का है? Immediately I will tell you. I will go to the path. Edit करूंगा मैं. लास्ट में मैं जैसे इधर टॉमकैट अपाचे का बिन का पाथ दिया है, राइट? आई विल गो ओवर हियर, राइट? जो मेरा इधर अपाचे बिन का पाथ है, सी दिस बिन पाथ, आई विल कॉपी इट and I will paste it over here. That's it. And I will press a semicolon. Right? Is it clear? I think it is clear to you, right? So मैंने ये path किया. Then second one is class path. Class path तो आपने already JDK का लिखा है. JDK का lib का path आपने already दिया है. Fine. Now there are 2 contents. One is Java home. Java home में देखो there is no semicolon and all the letters are capital. Java home. Please clear this in mind. Variable name is what? Java underscore. Where I am doing this? I am doing this in system variables. I am not working in user variable. Please look at this. It may happen कि Java home आपका पहले ही रहेगा, fine. Otherwise नहीं रहेगा तो new करो. New में इधर लिखने का Java underscore home. अगर new है तो करो, अगर है already तो just edit it. एडिट करके वेयर इज यूर जावा इन प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके, बस ये पाथ देने का. दिस पाथ विल नेवर टेल यू वेयर इज यूर बीन, वेयर इज यूर लिब. दिस पाथ विल टेल यू वेयर इज यूर जावा. जावा किधर है? इधर है मेरा जावा. सो दिस इज माय होम ऑफ जावा, दिस इज माय रेसिडेंस ऑफ जावा. Only this much, right? Java underscore home is important, and no semicolon, no semicolon. Again, I am repeating. The next one is Catalina home. तो Catalina home obviously पहले आपके पास नहीं रहेगा तो न्यू करो, लिखो इधर Catalina underscore home, कैपिटल में लिखने का है. और पाथ कौन सा देने का है? पाथ देने का है ये वाला, not bin. Where is my tomcat? Where is my tomcat? My tomcat is over here. I will not put semicolon. Say okay. ये मैंने ऑलरेडी किया है तो मैं इधर खाली आपको दिखाता हूँ. ये देखो कैटेलिना अंडरस्कोर होम कैपिटल में है. ये आपके पास नहीं रहेगा तो न्यू करो, राइट? अगर रहेगा और ऑलरेडी रहेगा तो एडिट करो और देखो whether your tomcat is there or no. So these are the 2 interfaces, right? And there is again no semicolon. So say okay. ये 4 होने के बाद में ये 4 वेरिएबल है, सिस्टम वेरिएबल, एनवायरमेंट वेरिएबल, ये 4 वेरिएबल आपका हो गया. उसके बाद में then you go to the bin and there are 2 files. One is called as startup bash file and shutdown bash file. यानी I want to start the Tomcat server. I have to double click on startup, and after working on this, after completion of my work, I will double click on shutdown. This is the process to start and shut down, right? Shutdown यानी मैं सिस्टम शटडाउन नहीं करूँगा तो अपना सर्वर जो है वो उसमें गड़बड़ हो जाएगा, राइट? स्टार्टअप एंड शटडाउन ये हम लोग को करने का है, राइट? इट्स ऑलवेज वी हैव टू डू इट, राइट? सो लेट्स से स्टार्टअप, अगर 4 एनवायरमेंट वेरिएबल में कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा, देन इवन दो आई डबल क्लिक ऑन स्टार्टअप, इट विल जस्ट स्टार्ट एंड इट विल क्लोज ऑटोमेटिकली. उसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ हो गया एनवायरमेंट वेरिएबल में. इफ आई डबल क्लिक ऑन स्टार्टअप एंड नाउ यू कैन सी
द सर्वर इज बीन स्टार्टेड। ये देखो अभी सर्वर स्टार्ट हो गया है, गाड़ी चालू हो गया है मेरा, राइट। लुक एट दोस्त, एक मिनट लगेगा मैक्सिमम। यस, सी जस्ट सी। और इधर लास्ट में आपको मालूम पड़े, सी कैटेलिना स्टार्ट सर्वर स्टार्टअप इन दिस मेनी मिली सेकंड, यानी ये मेरा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो गया। नो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। अगर ऊपर ऊपर जाओगे और आपको इधर कुछ भी ऐसा एक्सेप्शन, ऐसा कचरे जैसा कोड नहीं दिखाई दिया, उसका मतलब समझ लेने का कि भाई बराबर सब कुछ है। वॉट एवर आई इंस्टॉल, वॉट एवर इज एवरीथिंग इज करेक्ट। देखो बराबर आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, आपको जावा का एरर मालूम रहेगा ना, कुछ तो एरर आया है, एक्सेप्शन आया है, थ्रो एक्सेप्शन, लाइक दिस एनी काइंड ऑफ एरर इज देयर, देन यू विल गेट लाइटलेस एक्सेप्शन। यानी इवन तो योर आपका कैटरीना टॉमकैट सर्वर स्टार्ट हो गया, स्टिल देयर आर सम प्रॉब्लम्स, इट मे हैपन। बट अभी मैं तो चेक कर रहा हूँ आपके सामने, ये देखो मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। इट्स बिगिनिंग लेवल एंड इट्स नाउ स्टार्टअप। तो ये स्टार्टअप है, तो मैं खाली क्या करूंगा, उसको मिनिमाइज करके रखूंगा, राइट। हियर दिस इज माय टॉमकैट सर्वर इज रनिंग। नाउ दिस सर्वर इज रनिंग टिल 24/7। 24/7 का मतलब है वो पूरा चालू ही रहेगा, so that the people can access my web page at any time anywhere in the world, right? Now let us see, let us open the new tab, and let's say 127.0.0.1 and colon 8080 is my पोर्ट नंबर। ये पोर्ट पे टॉमकैट सर्वर बाय डिफॉल्ट चालू होता है। तो ये मेरा पहला यूआरएल है, आई विल हिट ऑन इट एंड जस्ट सी दिस इज माय टॉमकैट वेब पेज। ये वेब पेज का दर्शन आपको होना चाहिए पहले। इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर वेब सर्वर, उसका मतलब हो गया कि भाई मेरा टॉमकैट सर्वर अभी इट्स रनिंग करेक्टली, यानी माय टॉमकैट सर्वर इज देयर, इट्स रनिंग ओवर हियर। आई मिनिमाइज इट, I open the new tab and I give the URL 127.0.0.1. It's a local host colon 8080. Now, if this my PC is being connected to the internet and if you know my IP address, आपको मेरा IP address मालूम है, maybe I am not knowing it, right? You may ping and you can see, जैसे Yahoo का है, Google का है, .0.0.1 so and so forth, right? Then you can connect to my server. ऐसा उसका मतलब हो गया, यानी ये ऑनलाइन प्रोजेक्ट हो गया आपका, राइट। इफ योर पीसी इज कनेक्टेड टू दिस, राइट, एंड इफ यू गिव लाइक दिस दैट आई वांट टू सी आईपी कॉन्फ़िग में लेट्स से ये मेरा आईपी एड्रेस है 192.168, ये वाला हमारा मेरा आईपी एड्रेस है 221.1 ना, लेट्स चेक 198.168.221.1. see, now see, my server is running at this particular IP address and port number. यानी ये जो IP एड्रेस, ये जो अलोकेटेड है पूरे कॉलेज में फ्रॉम कॉलेज और फ्रॉम कॉलेज पीपल, कॉलेज एनवायरनमेंट, कॉलेज कैंपस, कोई भी बंदा अगर मेरे पीसी से रिक्वेस्ट करेगा तो ये रिक्वेस्ट किया तो भी वो मेरा पेज एक्सेस कर सकता है, राइट। So there may be a chances to look at this particular this thing, or it is happening like first time it is accessing, so it will take a lot of time. So to avoid this time I am using this अभी के लिए, this is a local host. अभी के लिए मेरे को local host चाहिए, otherwise it will take a lot of time. But I was just told you that how can you access your page, right? मेरा port number is not going to change it at all. Okay, this is my port IP address. अभी ये Ethernet का है, I would have to use this IP address. ये देखो ये अलग अलग इथरनेट का आईपी एड्रेस है। सो जो भी आईपी एड्रेस आपका, राइट, डीएचसीपी से जो भी स्टैटिक रहेगा आपका आईपी एड्रेस, वो आईपी एड्रेस डाला तो यू कैन एबल टू चेक, अदरवाइज दिस आईपी एड्रेस आर विल गो वाया लाइक दिस। ओके, सो लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस नाउ। तो अपना टॉमकैट सर्वर है, ऑलरेडी इज रनिंग, मैं मिनिमाइज करके खाली रखता हूँ। नाउ next thing is what I will do it. I will go in web apps directory. Here I am going to make my first web page hello world. Java में मैं hello world का प्रोग्राम लिखूंगा, right? Web apps. So I have made my folder, like sample is my folder. ये sample मैंने बनाया है. Let's create a new one for you. जैसे मैंने बनाया test is my folder
and over here I create one web page web file. Let's first of all open the Visual Studio Code. अभी अपना कोडिंग का थोड़ा थोड़ा पार्ट चालू हो जाएगा, बट दिस इज द एनवायरमेंट आई मेड इट. आई मेड अ वेरी नाइस एनवायरमेंट, राइट. ओवर हियर ओ व्हाट हैपेंड, ये कोड स्टूडियो को क्या हो गया, दूसरा ओपन हो गया. विजुअल स्टुडिओ कोड काय झालं. ओके, राइट. सो इट्स opening. I have to open this particular folder. It's running very slow. Okay. So I go to the file, I open my folder which is required. वो किधर है, अपना फोल्डर है अपाचे टॉमकैट में, वेब एप्स में टेस्ट नाम का फोल्डर है, उधर मुझे प्रोग्राम लिखने का है. ओपन फाइल, सॉरी ओपन फोल्डर, आई हैव टू open folder. I will go here, web apps test, correct. Now over here I will write my first program. ओके, तो अभी मैं थोड़ा सा बात बोलता हूँ. देखो कैसे करने का. इट्स अ न्यू फाइल, राइट, न्यू फाइल, एंड एवरीबडी नोज. फॉर एग्जांपल दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम. आप फर्स्ट प्रोग्राम में क्या लिखते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल यू राइट HTML ओवर हियर, राइट, यू राइट HTML ओवर हियर. नाउ लेट्स चेक. आपने एक्सक्लेमेशन मार्क दिया एंड टैब मारा, राइट. इफ यू पुट लाइक दिस एक्सक्लेमेशन मार्क एंड टैब, राइट, सो यू विल सी फाइंड इट आउट हियर कि ऑटोमेटिक आता है, राइट. दिस इज द थिंग दैट द विजुअल स्टूडियो इज गिविंग टू यू. व्हाट यू हैव टू डू, एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करने का तो ये पूरा बन जाता है, तो खाली बॉडी पार्ट है. सो व्हाट आई विल डू, यू नो, आई विल क्रिएट माई first.jsp प्रोग्राम. एक्चुअली JSP में भी ऐसा क्या तो आना चाहिए लेकिन नहीं आता है. सो दैट्स वाई व्हाट आई डिड, खाली ये किया है. आई विल जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट माई first.jsp. एंड ओवर हियर बॉडी में क्या लिखने का, बॉडी में लिखने का देर इज समथिंग कॉल्ड स्क्रिप्टलेट. ये देखो क्या किया है. आई ओपन ब्रैकेट एंड परसेंटेज एंड आई अगेन परसेंटेज एंड क्लोज. सो दिस इज वॉट, एंड उसके अंदर मैं लिखूंगा out.println. 16.println के बजाय क्या लिखूंगा, out.println. हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड. हो गया मेरा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम. माई प्रोग्राम हैज बीन डन. सी over here how to open this, go to the browser and over here my folder name is test slash my file name is first.jsp. click it over here. See, can you see this, Aditya? hello Aditya कुठे गेला वाटते. स्नेहा can you see this? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, so you can see the output of this JSP file. So just imagine how it is so simple. Well, you know, if you know the JSP, you can go on making the pages. So you can use bootstrap programming, whatever HTML का पूरा यूज कर सकते हो. और जावा कोड उसके अंदर एम्बेड किया है. यू कैन जस्ट इमेजिन जावा कोड इज एम्बेडेड ओवर हियर, राइट. आपको अभी मजा दिखाता हूँ मैं आपको. आपने इतना ही दिखा है, राइट, out.println. नाउ अगेन ओवर हियर आई विल नॉट टेल यू, राइट, ये आउट किसका ऑब्जेक्ट है. इट्स नॉट अ प्रिंट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट जो मैं आपको बोला था, ये पूरा अलग ही है. JSP राइटर का ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट है ये प्रिंट आउट. JSP का डॉक्यूमेंटेशन अलग है. इवन दो वी आर यूजिंग कोर जावा सिंटैक्स एंड एवरीथिंग, इधर हम लोग का फॉर लूप व्हाटएवर वी आर डूइंग इट इन कोर जावा, एवरीथिंग विल गेट ओवर हियर. लेकिन देर आर सो मेनी अदर पैकेजेस ऑल्सो. अभी जैसे मैंने बोला था इट्स अ टोटल, अभी ये सिंपल प्रोग्रामिंग है. अदरवाइज अगर मैं इधर लिखता हूँ H1 हेलो, व्हाट इज दिस H1 हेलो. H1 का मतलब क्या, हेडिंग टैग है.
राइट, मैं इधर ब्राउजर पे जाऊंगा और जैसे ये करूंगा, ये देखो, ये तो हेडर है ना। सर हाँ बोलो। कॉम्प्युटर स्क्रीन नाही दिसत आहे सर. कंप्यूटर स्क्रीन, स्क्रीन नाही दिसत आहे सर. कॅमेरा ऑन झालाय. नाही परत थांब जरा, मी स्टॉप प्रेझेंटिंग करून परत प्रेझेंटिंग करतो. हां आता दिसते का बघ रे. हॅलो हा हॅलो. सर दिसते. हां आता बघ, हे आउटपुट दिसतोय तुम्हाला. हो हो सर. हां बस बस, आता बघ, आता हा हॅलो कुठून काढला. सी, H1 इज अ हॅलो, right? Now you can just see it's a pure HTML code, na, pure HTML code, right? Now what I have done, I have embed Java program inside HTML. How the embedding is done? Because of this. This is something called as scriptlet. क्या इसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं scriptlet, राइट. सो व्हाट टाइप ऑफ स्क्रिप्टलेट्स आर अवेलेबल, कौन से टाइप के स्क्रिप्टलेट्स अवेलेबल है, कौन से सिंटैक्स अवेलेबल है. तो ये सब जेएसपी में हम लोग को सीखने का, एक बार वो सीखा, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस है ना. एक बार सीखा तो आपका पूरा प्रोजेक्ट आपका ये जबरदस्त हो जाएगा, एंड इट्स अ यूनिक. यू कैन जस्ट इमेजिन जावा टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग फॉर द वेब सर्वर ऑल टुगेदर, राइट. कितना बड़ा एडवांसमेंट. तो इसमें आप शॉपिंग कार्ड बनाओ, अमेजोन का जैसे फ्लिपकार्ट shopping.com ऐसा वेबसाइट बनाओ, कौन सा भी वेबसाइट बनाओ ना, राइट. तो लेकिन एंड इट इज एक्सेसिबल बाय ऑल, इट इज एक्सेसिबल बाय ऑल. इट्स नॉट लाइक दैट कि अभी मैं आपको कोड दिया, आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा. इट्स ऑफलाइन, इट्स अ यूनिक सिंगल यूजर, इट्स अ मल्टी यूजर, सब लोग यूज कर सकते हैं, है कि नहीं. ना उसके अंदर भी ये देखो, इसके अंदर भी अगर मैंने H1 लिखा तो भी पॉसिबल है. इट्स नॉट लाइक दैट आई एम गेटिंग द एरर ओवर हियर. जस्ट सी, लुक एट दिस. बस अभी मैं कंपाइल करूंगा, ये कोई जरूरत ही नहीं है. आई जस्ट मेक इट लाइक दिस एंड आई जस्ट रिफ्रेश द पेज, यू विल गेट आउटपुट, इमीडिएट आउटपुट. यू कैन जस्ट सी हेलो वर्ल्ड. और वही अगर हम लोग इधर टर्मिनल पे हेलो वर्ल्ड कितना भी लिखो, वी विल नॉट मेक एनी सेंस ना. इधर अभी अभी HTML है, HTML में मैं इधर JPEG ऐड कर सकता हूँ, यू नो, आई कैन डू वॉट एवर आई वांट टू डू बिकॉज इट्स अ वेब पेज ऑल टुगेदर. वेब पेज में मैं बूटस्ट्रैपिंग, प्रोग्रामिंग, रियल टाइमनेस, एनिमेशंस और कैसे लुक एंड फील कैसे करने का है, कुछ भी कर सकता हूँ बिकॉज इट्स एक्चुअली HTML एंड एवरीथिंग. इट्स HTML5 आई एम यूजिंग, राइट. एंड ऑल्सो अलॉन्ग विथ इट जो बिजनेस लॉजिक, यानी इधर जो मुझे प्रोग्रामिंग करने का, इफ एल्स, स्विच एंड वॉट एवर थिंग्स आर आई एम गोइंग टू डू इट, आई एम गोइंग टू डू इट एक्चुअली आई एम यूजिंग जावा ना. यू कैन जस्ट सी, अभी out.println है, आई कैन सी द व्यू सोर्स. ये किधर आपको out.println दिख रहा है, देखो, देयर इज नो out.println. उसका मतलब क्या हो गया, व्हाट आई टोल्ड यू, JSP इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. दिस इज प्योर HTML. ये HTML दिखाई देगा क्लाइंट को, आपका जावा का कोड नहीं दिखाई देगा, राइट. जस्ट सी इट. नाउ लेट्स एज्यूम, मैं इधर अभी देखता हूँ, इट आई इक्वल टू 0, राइट. अपना जावा का प्रोग्राम सिंपल, हाँ. फॉर आई इक्वल टू 0, वो तो है ही है. आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस. नाउ इट मेक्स सेंस. नाउ राइट हियर out.println, out.println लिखो इधर, राइट. the value is और प्लस आई करो, रिफ्रेश करो, ये देखो आ गया, है ना. द वैल्यू इज 0, वैल्यू इज 1, वैल्यू इज 2, वैल्यू इज 3, राइट. एंड आई वांट टू, लेट्स से आई वांट टू पुट /n नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए, सपोज, right, /n, it is not working in Java content, so print ln है actually, print ln it should come in the next line. So let's find what I will do. इधर मैं out.println करके मैं इधर और एक फिलिंग द ब्लैंक्स ऐड करता हूँ. लेट्स चेक इट. println ठीक है, println का इधर अभी बात छोड़ो, लेकिन लेट्स एज्यूम ये मैंने सिंपल कोड लिखा है एंड यू आर गेटिंग दिस एरर. नाउ सी द सोर्स कोड. देखो सोर्स कोड में किधर है, सोर्स कोड में जावा कोड है किधर, है ही नहीं.
तो यू कैन जस्ट इमेजिन ओनली HTML कोड, खाली HTML कोड इसने प्रिंट किया है, राइट. एंड वेयर इज द जावा कोड नाउ? नाउ आई विल टेल यू द जावा कोड. नाउ हियर इज माय वेब सर्वर, राइट. राइट. इसमें वेब एप्स में मेरा टेस्ट नाम का फोल्डर है, टेस्ट नाम में मेरा ये JSP पेज है, राइट. ये तो HTML पेज था जो हम लोग ने इधर लिखा था कोड लेने के लिए, अदरवाइज दिस इज माय फर्स्ट JSP. Now you can see it over here. I will go to the work folder. Now अभी ये work folder है, this is at the server side. Catalina, localhost and test नाम का folder. अभी ये तो मैंने इधर बनाया नहीं ना. I have not created this folder in localhost work नाम के folder में. But who has done this? This has been done by the JSP engine. JSP container जो हम लोग बोल रहे थे ना, ये JSP container engine का काम है, ये मेरा काम नहीं है. उसके अंदर देखो, उसके अंदर org, Apache, JSP, और ये देखो ये क्या बन गया भाई, ये तो मेरा फर्स्ट अंडरस्कोर JSP डॉट जावा फाइल बन गया. उसने जावा फाइल को क्लास फाइल भी कन्वर्ट किया, राइट. एंड नाउ इफ आई ओपन दिस जावा फाइल, यू विल कम टू नो कि जावा फाइल के अंदर है क्या. आई विल ओपन दिस लाइक दिस ओनली, राइट. ओके, ओपन दिस कोड यूजिंग दिस कोड ओनली. सी दिस, अरे कितना बड़ा कोड बन गया देखो. विद इन 1 सेकंड क्लिक किया, ये देखो हेलो वर्ल्ड, इधर उसने एम्बेड किया. ये मेरा प्योर जावा कोड है. दिस जावा कोड इज द प्योर जावा कोड. ये देखो पैकेज पूरा जावा कोड है. ये कोड क्या है? फर्स्ट, राइट. ये देखो फर्स्ट अंडरस्कोर JSP डॉट जावा कोड. ये जावा कोड उसने लिखा, राइट. एज आई टोल्ड यू नो, इसने क्या किया? दिस इज अ क्लाइंट ने क्या किया? ये JSP फाइल, इट्स अ रिक्वेस्ट सेंड टू द सर्वर. सर्वर ने क्या किया? ये भाई JSP को दोनों में डिवाइड किया. एक में बोला कि JSP HTML पेज, दूसरा बोला कि HTML जावा पेज, प्योर जावा पेज. जावा फाइल कन्वर्ट किसने किया? JSP कंटेनर ने, JSP इंजन ने कन्वर्ट किया. बाद में वो जावा फाइल JSP कंटेनर ने किसको दिया? JVM को. वाई JVM को? बिकॉज इट हैज टू कन्वर्ट इनटू क्लास फाइल. तो उसने क्लास फाइल में कन्वर्ट किया. बाद में उसका आउटपुट एम्बेड किया HTML में, राइट. उसका आउटपुट एम्बेड किया ये HTML में. दिस इज द आउटपुट. ये इसका आउटपुट है, किसका? जावा का. ये देखो, ये इसका जावा का आउटपुट है. जावा का आउटपुट JSP के अंदर एम्बेड किया एंड प्योर HTML कोड आपको क्लाइंट के सेट के अंदर दिखाई दिया. वेयर व्हाट इज द बिजनेस लॉजिक? बिजनेस लॉजिक यानी मैंने फॉर लूप यूज किया है, व्हाइल लूप यूज किया है क्या, और क्या यूज किया है, क्या सर्वर में मैंने क्या खेला है. Nothing is can be seen on the web page. That is something called as a security. Java is giving you the pure security. अगर यही कोड अगर हम लोगों ने Python और इसमें और जो भी इसमें लिखा रहेगा तो you might see that particular code also. JavaScript code or whatever code it is there on your web page, right? So it may happen that anybody can hack your code. But over here, अभी मैं बोला कि चलो जावा का कोड किधर है, जावा का कोड मैंने क्या लिखा है बोलो, कि nobody knows कि मैंने जावा में कोड out.println लिखा है, H1 उसके अंदर लिखा है, कि इसमें मैंने for loop. It's a very simple one, it's a basic one, that's fine. Let's say I am writing a full big code for it. पूरा कोड बिजनेस लॉजिक मैंने लिखा है. Servlet का तो बात ही अलग है. Servlet will not overseen by the user itself, right? And that's why many real-time websites, they are used with this Java technology, JSP and Servlets. That's why the people are using JSP and Servlet, because Java is secured. You can just see who is going to hack this code and how it is going to hack. Nobody is going to hack this code at all, right? Nobody is going to do that. Just see it over here. ये किधर है? ये वर्क में, ये मेरे लोकल सर्वर में है. दिस इज एट द सर्वर साइड. मेरा वेब पेज तो इसमें है, राइट, वेब एप्स में है, राइट. एंड वेयर इज माय दिस थिंग? वर्क इज ओवर हियर. ये कैटेलिना अंदर, यानी क्या? कैटेलिना इज द सेकेंडरी, एज आई टोल्ड यू नो, ओवर अंदर JSP engine, Servlet engine means container. There are a lot of containers are inside the server. Just imagine the power of Java. Are you getting? So that's why I told you to please work on this. And if you do a very small mini project in this particular technology, you will get a feel. You will get a feel. There are a lot of things that you can only do it in Swing and database. Fine. वो भी अलग टाइप का प्रोजेक्ट्स है, वो भी आप लोग अलग बना सकते हैं. लेकिन ये भी है ना, पूरी
पूरे ऑनलाइन का हिसाब मांग रही है, तो ऑनलाइन में जितना प्रोजेक्ट्स हम लोग कर सकते हैं उतना हम लोग का अच्छा है। तो किसी ने बोला कि चलो जावा टेक्नोलॉजी आता है क्या, यस जावा में हम लोग ऑनलाइन कैसे बनाते हैं, ऑनलाइन कैसे प्रोजेक्ट बनाने का, राइट। देन यू विल नॉट से कि स्विंग, स्विंग इज अ एप्लीकेशन विच यू कैन इंस्टॉल इट ऑफलाइन, यानी मुझे पूरा प्रोजेक्ट देना पड़ेगा सब किसी को, और उसको बोलना पड़ेगा ये इंस्टॉल करो भाई तेरे पीसी पे, देन आप रन करके देखो कैसा लगता है क्या लगता है, राइट। किसको किसको टाइम है आपका इतना प्रोजेक्ट देखने का। इफ आई जस्ट मेड दिस वेबसाइट लाइक दिस, पूरा वेबसाइट एकदम जबरदस्त टकाटक फुल इमेज इमेज एनिमेशन सब सब कुछ बना है, राइट। देन लुक एट दिस, जैसे अपना ये वेबसाइट है visit.edu.in, दिस इज नॉट मेड इन बाय द वे JSP एंड Solid, वो बात अलग है। सो बूटस्ट्रैपिंग, लेकिन यू कैन जस्ट सी द लुक एंड फील ऑफ एवरीथिंग, राइट। फ्लैश स्क्रीन आता है, ये आता है, राइट, द नोटिसेस, द यूट्यूब चैनल्स, सी द विजन मिशन, realisticness na, see the pictures are coming like this, right, it's a placement count, everything, it's we are having the animation and everything so and so forth, right। और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर पूरा जावा कोड लिखा है, अभी नहीं लिखा है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ आपको, यू कैन पुट इट लाइक दिस मेनू एंड एवरीथिंग, राइट। ऐसा रियल टाइम प्रोजेक्ट यू कैन गो फॉर, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, यू कैन गो फॉर लाइक यू कैन डिजाइन वेबसाइट लाइक Amazon, ऐसा वेबसाइट बना सकते हैं, right, the code, the images, the everything will come, and once you will click on the this thing, I want to view deal, if you click on it, this is the JSP page, इसमें भी रहे अभी, see all the people they are working now in advanced technologies, अभी JSP Solid का भी जमाना बहुत हो गया, right, but as a Java programmer, you know, as a first time we are doing it, so directly we cannot jump for the React JS and everything ना, Node JS, and वो तो आने वाला ही है। Angular JS is depends upon your Java programming only, यानी जिसको जावा आता है, जिसको JSP Solid आता है, जिसको वो MVC आर्किटेक्चर सब कुछ आता है, उसको React और Angular सीखने के लिए it will take only hardly 1 and 2 days, तो इतना बड़ा कोर्स करने का भी जरूरत नहीं है, बिकॉज दे नो द डिटेल्स, उनको कोर जावा से लेके इधर तक उसने काम किया है, तो उसको मालूम है, सो दे विल जंप इट ऑटोमेटिकली। सी माई केस, राइट, आई हैव नेवर लर्न दिस एवरीथिंग, यू नो, ये ऑटोमेटिकली मैं सीख रहा हूँ, फटाफट सीख रहा हूँ, जंप कर रहा हूँ, because I know the details, right। If I click over here, अगर मैं इधर click किया, then it will call the Solid will give me the response like this, right। You can just imagine, अगर मुझे इधर भी ये जो मेरा फाइल है, नॉट दिस, ये जो मेरा URL है, इधर का URL है, ये URL भी मुझे जरा थोड़ा कन्वर्ट करने का है, लाइक इंक्रिप्टेड, ये देखो इंक्रिप्टेड। Why this encryption is there, you know, because it's very difficult for me to hack this particular page हैक करने के लिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज एवरीथिंग आई एम गेटिंग, इट्स अ पैरामीटर, जस्ट सी, ये मैं पैरामीटर पास किया है, डॉट डील वगैरह जो भी कुछ है वो, राइट। एंड ओवर हियर इफ यू सी दिस स्लैश करके एक रेफरेंस क्या है, दिस इज अ रेफरेंस, क्वेश्चन मार्क मीन्स व्हाट, इट्स अ पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर आपको चाहिए, एस मिड इक्वल टू दिस एंड दिस equal to this, यानी these are the parameter, but what is this is a encrypted code, ये encrypted code भी कैसे जनरेट करने का, URL में कैसे डालने का, these are the techniques that you will learn it obviously afterwards, right। वैसे भी मुझे भी इधर let's say इधर मुझे पैरामीटर पास करने का, how can I pass it, क्वेश्चन मार्क name is so and so योगेश, now योगेश क्वेश्चन मार्क भी डाला, so it will give me what, nothing, because ये पैरामीटर मैंने डाला है, लेकिन पैरामीटर एक्सेप्ट किधर किया मैंने, I have to get the parameter, so get parameter करके function है, lot of functions, a lot of things are available in JSP, but many things you can do it like this, you know, right। बाद में there is something called a view cart means it's a session you are putting the sessions, right। बाद में इसमें गए शॉपिंग कार्ड में गए कि आपने क्या क्या आइटम्स खरीदा है, क्या क्या नहीं खरीदा है ना, then you will have the payment systems and then so and so forth। ऐसा छोटा सा शॉपिंग कार्ट जैसा प्रोजेक्ट भी आपने JSP Solid में बनाया, सब लोगों ने, छोटा सा प्रोजेक्ट, इधर मैंने एटम व्यू किया है, लोग से आई पुटिंग इट इन टेबल, राइट। जैसे ये मेरा JSP पेज है ना, इसके बाद में लेट्स से आई वांट टू पुट इट इन टेबल, तो आई नो इट हाउ टू पुट अ टेबल में कैसे डालने का, राइट ना। ये थोड़ा सा HTML है, बट HTML सो सिंपल, HTML में क्या है, HTML तो छोटे बच्चे लोग भी करते हैं, we are engineers, why we cannot do like this, TRTD में खेलने का है खाली, you also know it,
और अभी टेबल का भी जमाना है, अभी तो किसका जमाना है, div का जमाना है, div, div, you have got style sheet and everything. ये तो मैं पुराने जमाने की बात कर रहा है, टेबल एंड दिस थिंग, right? But still it's okay, right? And this meta tag, you can just see viewport and this thing itself, it tells that it's a responsive website. Responsive यानी यही वेबसाइट अगर मैं इसमें देखता हूँ अपने मोबाइल पे देखूंगा तो भी मेरे को बराबर से ठीक ढंग से दिखाई देगा. एनी डिवाइस इफ आई यूज इट, बड़ा डिवाइस छोटा डिवाइस किधर भी मैं वेबसाइट देखता हूँ तो बराबर से दिखाई देगा. दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ रिस्पॉन्सिवनेस, राइट? अभी इधर आएगा मेरा, इधर आएगा, सपोज आई विल से कैप्शन आएगा, लॉग इन, टीडी खत्म. टीडी का मतलब है द टेबल डेटा, राइट? और उसके अंदर मेरे को टेक्स्ट डालने का, सो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, राइट? दैट्स इट. साइज भी फिक्स करने का तो वो भी मैं कर सकता हूँ. तो ये हो गया एक टीआर. दूसरा हो गया दूसरा टीआर, उसमें मैं बोल सकता हूँ पासवर्ड, राइट? टेक्स्ट है सपोज, आगे हम लोग बहुत देखेंगे, बट लेट्स चेक लाइक दिस. Then I have to put it this in center, so I will put it in center. Center का क्या गड़बड़ हो गया, CENTRE, नहीं TRE नहीं, सेंटर ही है ना रे. Center tag is there. I want to put in a center tag. Center tag अभी मालूम नहीं, let's check it out. How to put in a center tag, कुछ तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए. Let's check. You see this, everything becomes in center. So I am having login and password, and then I want to put some buttons on it. अभी मैं center tag में इसको डाल सकता हूँ. Why I want center for the hello world? I do not want a center in the hello world. I want this thing only in center. ये रहने दो, खाली ये login password ही चाहिए हम लोग को, right? And then you put two buttons for this. तो TDTR तो common ही है, इधर लिखो input type equal to button, or type equal to let's say submit, and type equal to reset, right? And there is something called as a value which you want to show it in the on the web page, right? And so ये देखो सब कॉम्बिनेशन है, इसका कॉम्बिनेशन है. नाउ आई एम नॉट रिटर्निंग द एनी जावा कोड है क्या, ये नहीं है, ये तो सिंपल आपका HTML पेज है. सी दिस. नाउ इफ आई पुट लॉगिन पासवर्ड, और पासवर्ड मेरे को दिखना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, तो पासवर्ड के लिए इंस्टेड ऑफ दिस आई विल पुट पासवर्ड. तो आई थिंक ये दिस चीज़ है, ये तो आपको सबको मालूम रहेगा, राइट? दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस एट ऑल. ये मैं नेम निकालता हूँ, आई एम नॉट पासिंग एनीथिंग पैरामीटर, कुछ पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ, राइट? लॉगिन एंड पासवर्ड, सी दिस. एंड इफ आई क्लिक ओवर हियर देन दैट सर्वलेट विल कॉल, जो मेरा डिजाइन पैटर्न था. सो लाइक दिस, यानी ये पेज में मुझे लॉगिन दिखा सकता हूँ, इधर ऐड दिखा सकता हूँ, इधर मेनू दिखा सकता हूँ, यू नो सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू इट. एंड एक्चुअली कोड किस में लिखा है आपने, जावा कोड. सो अभी ये क्लिक किया तो क्या हो जाएगा, इट विल क्लिक. वंस यू क्लिक ओवर हियर देन द सर्वलेट विल कॉल. सर्वलेट इज अगेन द जावा प्रोग्राम. एंड इफ यू सी, you can see able to see only what the HTML code. So full website will not get hacked at all. Because why? Because Java is a secured language. और क्लास फाइल का कोड भी वो देता है. सो क्लास फाइल एंड मेन जो सोर्स फाइल है वो तो किधर है, वो तो अपने कैटरीना होम में है. यानी इट इज नोबडी इज गोइंग टू हैक यूर दिस थिंग. कोड क्या लिखा है, कैसे लिखा है, मैं उसको रीडायरेक्ट करूँ क्या, नो वन. एंड दैट्स व्हाई पीपल वेर शिफ्टेड फ्रॉम .NET to this JSP Servlet. Why people are faith on Java? Because Java is a secured language. Why Java is secured? Because of this. Because अगर ये इधर JSP दिखता है, लेकिन मैंने सोर्स कोड किया तो जावा का कोड भी नहीं है ऐसी, ये तो ये हो गया, लेकिन जावा का जे भी नहीं इधर, तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा ये क्या है. जो क्लाइंट है JSP, जिसको नाम मालूम है जावा सर्वर पेज, वो भी खाली जावा कोड है, तो ठीक है. तो ये nobody can hack it because everything is there protected. So this is what the first example I have told you, how you can manage the Tomcat server, how you can manage the JSP. Lot of things are there to learn, right? One lecture again I will spend it, how can you write a servlet कैसे लिखेंगे, servlet को compile कैसे करेंगे, उसको run कैसे करेंगे. And in one lecture I will show it to you, how can you connect to the database. एक बार ये तीन चीजें आपको मालूम पड़ गया, then the road is ahead for you. You know, you can go with this and you can design a very nice project, very beautiful project.